Hello kids, how are you all? So once again, welcome back to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. So this is not going to clear all your concept but also going to make learn very fast, right? So kids, are you excited to learn the new topic? So in today's topic, we are going to begin a topic that is a very spicy. Oh no, what is this? This is a pizza. Oh pizza, it's so spicy and seems so delicious. So are we going to learn about the pizza or something else? Yes, we are going to learn about the pizza. Not about the pizza, how to make a pizza. We are going to learn about the shape of a pizza. That is a circle, right? So in today's class, we are going to begin with a shape of a circle. So we can see this is what? This is a very round kind of thing. ठीक है? So let's understand what is a circle. ठीक है? क्योंकि अगर हमें पिज्जा अगर पसंद है, चीज़ अगर समझ में आ रहा है, so this so many things can be happen in this circle. ठीक है? जैसे पिज्जा में बहुत सारी चीज़ें होती है, likewise सर्कल में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, right? So we are going to compare circle with a pizza and going to learn circle in a spicy manner, right? So let's move. So we have we have to know, like we know the what is a pizza, so we know what all flavors and everything about the pizza. So we also have to know about the circles. ठीक है? So what is the definition of circle? Circle is a locus of a point. एक locus of a point होता है in a plane in such a way that the distance from a given point fixed point is a constant. ठीक है? अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं तो this can be expressed like this कि ये एक लोकस ऑफ ए पॉइंट है, ये एक लोकस है. लेट्स टेक सी, एक लोकस एक पॉइंट है जो कि मूविंग पॉइंट है सी. ठीक है? और मैं सी को क्या बोलता हूँ कि आप मूविंग पॉइंट हो, नो डाउट आप मूव करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. ठीक है? बट आपको ओ से ओ जो पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है, ओ इज ए वॉट, ओ इज ए फिक्स पॉइंट. ठीक है? ओ इज ए फिक्स पॉइंट. ठीक है? आपको ओ एंड सी के बीच का आपको जो डिस्टेंस मेंटेन करना है ओ एंड सी के बीच में, that distance should be always constant. ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ इसके बाद जब मूव करना स्टार्ट करेगा on the kind of shape that will make, that will appear something like a what? That will appear like a circle. ठीक है? जो कि आपके पिज्जा के शेप में भी आता है, राइट? सो होप द डेफिनेशन ऑफ सर्कल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है? अब सर्कल्स में, क्योंकि पिज्जा में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बहुत सारे टॉपिंग्स होते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिज्जा हमने आज तक टेस्ट किया है. ठीक है? सो लाइक वाइज सर्कल में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें समझने की होती है, बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए होता है. ठीक है? सो लेट्स लर्न एवरीथिंग वन बाय वन. यू कैन सी द सो मेनी थिंग्स आर देयर, यू कैन सी द सो मेनी थिंग्स आर देयर, है ना? सो लाइक वाइज, है ना? सो वी आर गोइंग टू मास्टर एवरीथिंग, राइट? सो लेट्स आगे. सो व्हाट इज, ओ माई गॉड, सो डिलीशियस काइंड ऑफ थिंग, है ना? तो बहुत टेस्टी कुछ दिख रहा है. ठीक है? सो फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज अ राउंड शेप ऑफ ए पिज्जा. ठीक है? और मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे ये कुछ तो सेंटर दिख रहा था, फिक्स पॉइंट, दिस इज अ फिक्स पॉइंट. ठीक है? और ये इस फिक्स पॉइंट से यहाँ के बीच में एक डिस्टेंस दिख रहा है. ठीक है? सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? और ये डिस्टेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिस्टेंस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ठीक है? तो लोकस जो मूव कर रहा था, ये वाली जो डिस्टेंस है, लेट्स टेक दिस इज ओ पॉइंट, लेट्स टेक दिस इज अ P1 पॉइंट, लेट्स टेक दिस इज अ P2 पॉइंट, लेट्स टेक दिस इज अ P3 पॉइंट, एंड लेट्स टेक दिस इज अ P4 पॉइंट, एंड दिस इज द सिमिलरली Pn, एंड दिस इज द Pn+1 पॉइंट. ठीक है? तो कैन वी से कि OP1 इज इक्वल्स टू OP2 इज इक्वल्स टू OP3 इज इक्वल्स टू OPn, right? So all the distance are kind of same, right? So if all the distance are same, so this distance will be known as a what? This will be known as the radius of a circle, right? So what is the radius of a circle? So radius, a line segment joining the center and the point on the circle, the point on a circle, that's known as a radius, right? So I think the concept of radius is now clear to all of you. ठीक है? तो और क्या चीज़ें हो सकती है रेडियस के अलावा? सरकमफेरेंस. ठीक है? अब पिज़्ज़ा कितने बड़े साइज़ का है ना? दैट डिपेंड्स ऑन द हमने कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है. कुछ पिज़्ज़ा छोटे होते हैं, कुछ पिज़्ज़ा बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, लार्ज साइज, द स्मॉल साइज, द मीडियम साइज एंड द लार्ज साइज. हमने ये सारे पिज़्ज़ा टेस्ट किए हैं. ठीक है?
तो द लार्ज साइज पिज्जा की ये जो सर्कमफेरेंस होंगे, दिस एंटायर ये वाला जो एरिया होगा, दिस ऑल एरिया है ना, दिस ऑल एरिया इज नोन एज ए व्हाट, दिस ऑल एरिया इज नोन एज सर्कमफेरेंस। जो मीडियम वाला पिज्जा होगा उसका ये वाला जो एरिया होगा थोड़ा छोटा होगा, और जो छोटे वाला पिज्जा होगा उसका ये वाला एरिया और छोटा होगा। ठीक है। सो दिस आउटर पोर्शन ऑफ ए पिज्जा इज नोन एज ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है। सो व्हाट इज द सर्कमफेरेंस? द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज नोन एज circumference. So what is the perimeter? The outer portion, the entire portion जिसको हम कवर करते हैं, and this is also denoted by what? The equation of perimeter is 2 pi r. ठीक है, this thing we are going to learn in next classes. ठीक है। So what is the perimeter of a circle? Perimeter of a circle is 2 pi and r, right? तो I think this is clear to all of you. ठीक है। Let's move आगे। आगे क्या है हमारे पास? The chord of a circle. ठीक है। तो कॉर्ड क्या होता है ना, हाउ टू ड्रॉ ए कॉर्ड। ठीक है। अगर मैं पिज्जा के एंगल से बात करूं, ठीक है, तो पिज्जा में हम कॉर्ड अगर कट करेंगे तो कैसा कट होगा? तो पिज्जा का शेप जैसे रेगुलर नहीं होगा। ठीक है। तो कॉर्ड इज दिस। अगर हमारे पास सर्कल है और मैं पिज्जा को कुछ इस तरीके से कट कर दूं, है ना, ये, एंड इफ आई कट दिस पिज्जा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, तो ये बड़ा पिज्जा होगा, एक छोटा सा पोर्शन होगा। ठीक है। सो दिस ए बी पॉइंट है ना, ए बी विल बी द स्मॉलर पोर्शन, देयर इज स्मॉलर पोर्शन एंड देयर इज अ लार्जर पोर्शन। ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। सो दिस ए बी लाइन सेगमेंट विल बी नोन एज व्हाट? दिस ए बी लाइन सेगमेंट इज नोन एज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ठीक है। आई थिंक विद दिस यू आर क्लियर व्हाट इज द कॉर्ड एंड व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। Diameter means a line segment. Diameter of a chord is a diameter is also a chord, but वो क्या होता है? वो सर्कल के सेंटर के बीच से क्रॉस करता है। द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज नोन एज डायमीटर, क्योंकि वो सर्कल के बीचों बीच क्रॉस करता है। क्योंकि क्या होता है डायमीटर में? द डायमीटर, दिस इज द डायमीटर, क्या होता है? सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। एंड दिस क्रॉसेस विथ what? Center of a circle. So how can we define diameter? Diameter is a chord of a circle passing through the center of a circle, right? I think आपकी understanding regarding the radius, circumference, chord and diameter is clear to all of you. ठीक है। So if this is tasty, if this is spicy, let's move to आगे, right? So what is the next? Secant and the tangent of a circle. So what is the secant? Secant means अगर मैं क्या करूं, अगर मेरे if I have a circle, ठीक है, और एक लाइन में ड्रॉ करूं जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हुए निकल जाए। ठीक है। डिवाइड सर्कल्स इनटू द टू पार्ट्स। ठीक है। सो दैट विल बी नोन एज secant line. ठीक है। सो secant line, what is the definition of secant line? A line which intersect the circle at two distinct point, that is known as secant of a line circle. ठीक है। तो मेरे पास क्या एक पिज्जा है, ये तो ऑलरेडी कटा हुआ है पिज्जा। अगर ये पूरी शेप में होता है, लाइकवाइज इस तरीके का होता, और मैं इसे इस तरीके से कट करता। ठीक है। सो दिस लाइन सेगमेंट है ना, दिस ए बी लाइन सेगमेंट विल नोन एज व्हाट? द सीकेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट क्या होगा? सो टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, हाँ या दिस इज द टेंजेंट है ना, द टेंजेंट द लाइन सेगमेंट। अगर मान लो कि मेरे पास है ना एक सर्कल है, एक ऐसा लाइन में ड्रॉ करूं जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए। अगर ए बी एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि मेरे पिज्जा को सिर्फ बाहर से टच करे और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, so that kind of line will be known as a tangent of a circle. So you can see here the tangent of a circle, right? So what is there? The tangent is a line segment which touches circle at only at one point. ठीक है। So this can be defined a line that intersect the circle exactly at one point is known as a tangent of a circle. ठीक है। So can we say secant and tangent are the same? अगर मान लो secant जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैं टच करते अगर मैं secant को पीछे पुश करते ऐसे जगह पे ले आऊँ कि दिस टू पॉइंट्स कैन इंटरसेक्ट एट ओनली एट वन पॉइंट, है ना, तो secant in that case secant is also known as a tangent, right? So this thing you have to note down. ठीक है। अगर ये चीज़ secant and tangent are clear to all of you, तो let's move to आगे, right? So what is the position of a
हमारे पास। सो इन ए पिज्ज़ा वी लर्न सो मेनी थिंग्स, है ना। हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी। वो क्या चीज़ें लर्न की है कि टॉपिंग्स के बारे में, कि कौन सा टॉपिंग्स, कौन सा फ्लेवर का पिज्ज़ा वी लाइक, राइट। सो इन दिस पिज्ज़ा यू कैन सी दे आर सो मेनी काइंड ऑफ टॉपिंग्स आर, है ना, डिनोटेड हियर, राइट, यूज किया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ पिज्ज़ा डू यू लाइक, राइट। तो किसी को ये वाला पाइनएप्पल वाला पसंद है, किसी को हैम का, है ना। सो समवन इज लाइक, है ना। सो दे आर सो मेनी काइंड्स ऑफ टॉपिंग्स आर यूज्ड, ठीक है। तो जो टॉपिंग्स होती है, ठीक है, वो क्या होता है ना। सो यू कैन सी बाय लाइक दैट वी कैन से द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट, है ना। टॉपिंग्स की पॉइंट्स कौन सा है। सो वी कैन ऑल्सो डिनोट द पॉइंट विद इन ए सर्कल, आउटसाइड ए सर्कल एंड ऑन ए सर्कल, ठीक है। तो यू कैन सी हियर we can say point C is what? Point C is inside the circle, ठीक है। So this will be the BM, so we can say this BM is less than R. So what is the C? This is the CM is less than R, means radius अगर ये है, अगर radius is ये है, if this is the B, ठीक है। So we can see the CM is less than R, right. So we can say that CM is less than of R, ठीक है। We can see here, यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर कोई टॉपिंग मुझे यहाँ पे द कॉर्नर पे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी टॉपिंग्स अगर हो, so we can say B is at the point B is situated at circumference, so this BM will be equals to the radius of a circle, right. तो ये circumference पे point B is situated at where? So this is situated at circumference of a circle, right. And what about AM? So the AM point A is situated outside the circle. अगर पिज्ज़ा में कोई टॉपिंग्स अगर यहाँ पे डाल दे तो कैसा टेस्ट आएगा? बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होगा और उसका टेस्ट हमें मैच नहीं करेगा, ठीक है। So we can say this point A is situated outside the circle. So here point AM, the AM line segment, AM line is a greater than the radius of a circle, ठीक है। Here R represent the radius of a circle. I think with respect to this, to all three circles, we can easily understand the position of a point with respect to circle, ठीक है। So if this is clear to all of you, let's move again. So we have the interior and exterior of a circle, ठीक है। Now we have to learn the interior and exterior. So by this we can learn the interior and exterior of a circle. तो जो भी टॉपिंग्स पिज्जा के अंदर है, जो भी पॉइंट लाइक दिस पॉइंट, लाइक दिस, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, टॉपिंग्स दिख रहे हैं, so all points are known as what? Interior of a circle, interior of a pizza, right. So likewise we can also say that point X, point O, point P and point D are the interior of a circle. Likewise point M, point A, point B, point, है ना। So these all points are exterior of a circle, ठीक है। And point N, point Q, point R, these are the locus points. So that all points are located on a circumference of a circle, ठीक है। So I think interior exterior are clear to all of you कि हम कैसे एक पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं कि कौन सा पॉइंट सर्कल पे है, सर्कल के इनसाइड है और सर्कल के आउटसाइड है। आई थिंक विद दिस टू रेफरेंस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव आगे। सो वी हैव ए सर्कुलर रीजन एंड concentric circle, right. The concentric circle, right. So what is the circular region? So the region and all the points inside the circumference of a circle OP, the radius R. So all the black dotted line you can see here, है ना. So all these black dotted lines are points are known as a circular region. So all the region inside a circle, ठीक है, the OP radius circle. So this can be defined as the region consisting the all points. The region, this entire region consisting all the black points which are either on the circle, है ना, or lie on the circumference as known as the circular region, ठीक है। and the second point is what, है ना, अगर मैं उसका रेफरेंस लूँ, अगर यहाँ पे बताऊँ तो जितनी भी चीज़ें, है ना, इस पिज़्ज़ा के अंदर दिख रही है हमें, टॉपिंग्स हो, फ्लेवर्ड हो, स्पाइसेस हो, ब्रेड हो, एवरीथिंग, सो एवरीथिंग इज नोन एज ए व्हाट? सर्कुलर रीजन, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है। नाउ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसमें कि दो सर्कल हैं, ठीक है ना। ऐसा सर्कल जिसका कि सेंटर एक ही हो, अगर एक सेंटर हो एंड रेडियस टू डिफरेंट रेडियस हो, सो दिस इज आर
दिस इज द कैपिटल आर एंड दिस इज द स्मॉल आर, ठीक है, जिसका कि सेंटर एक ही हो, ऐसा सर्कल है ना जिसका कि सेंटर एक ही हो एंड रेडियस आर डिफरेंट डिफरेंट, सो दैट सर्कल्स आर नोन एज ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब मेरे पास एक ऐसा पिज्जा होता है जो कि छोटा पिज्जा होता है और वो उसके ऊपर मैं इस तरीके से अगर पुट कर देता, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रिक पिज्जा काइंड ऑफ थिंग बन के निकल के आता है, ठीक है। सो हाउ कैन वी डिफाइन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल? द कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैन बी डिफाइन द सर्कल which has the same center and different radii. So the radius is a singular and radii is a plural, right? So this is the two radii, one is the capital R, है ना, बड़े सर्कल का रेडियस इज कैपिटल R एंड छोटे सर्कल का रेडियस इज स्मॉल r, ठीक है। तो आई थिंक विद दिस योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग circular region and concentric circle are clear to all of you, right? So this is clear. Let's move आगे. So we have arc and the measure of a circle, ठीक है, arc and measure of a arc, right? So this is measure of a arc of a circle, ठीक है। So this is measure of arc of a circle, right? So this is this, correct, arc. अगर मुझे आर्क निकालना हो तो आर्क क्या होता है, ठीक है। तो मेरे पास है ना, मैं जो पिज़्ज़ा खाता हूँ, क्या खाता हूँ, मुझे पिज़्ज़ा मेरे घर में आता है तो मैं कैसे उसे खाता हूँ, आप कैसे खाते हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको कट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना, पिज़्ज़ा को बहुत सारे शेप्स में कट करते हैं, ठीक है। सो दिस एंटायर पोर्शन इस तरीके से कुछ कट होता है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस वाला है ना, आउटर पोर्शन ऑफ दिस, है ना, सो यू कैन सी दिस आउटर पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो बाहर जो सर्कमफेरेंस में से कट के जो निकल के आ रहा है, सो दिस position will be known as arc of a circle, arc of a pizza. Similarly in a circle, so this position है ना, this all है ना, so this AB है ना, AB is known as arc of AB is known as arc of a this circle and this is denoted by arc is denoted by this, ठीक है। And there is two kind of arc, one is a minor arc, another is a major arc. What is a minor arc, what is a major arc? लाइक बाई जैसे वर्ड लिखा होगा तो माइनर मीन्स छोटा काइंड ऑफ थिंग होगा, मेजर मीन्स बड़ा काइंड ऑफ थिंग होगा, ठीक है। अगर पूरे पिज्ज़ा में से आपको इतना छोटा मिल जाए और आपके फ्रेंड्स को या आपके ब्रदर को या आपके सिस्टर को अगर बड़ा वाला मिल गया तो आपको माइनर पिज़्ज़ा मिला, ठीक है, एंड आपके ब्रदर को आपके सिस्टर को मेजर पिज़्ज़ा मिला, ठीक है। सो दिस इज बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड द मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, ठीक है। और इसे डिनोट कैसे करेंगे, इसे डिनोट करेंगे थीटा से। तो ये जो पर्सन है दिस कैन बी डिनोटेड विद थीटा। तो अगर पूरे सर्कल का अगर एंगल 360 होता है, ठीक है, तो आपको अगर मान लो कि 20 डिग्री मिला है, मीन्स अगर आपको मान लो कि 30 डिग्री मिला तो रेस्ट एंटायर में 330 डिग्री जो पार्ट है आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर में बट गए, ठीक है। आई थिंक विद दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो दिस कैन बी डिनोटेड विद थीटा, सो एंड द आर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, AB आर्क, ठीक है। I think so you can also see here, so this is a 82 degree and rest this is 360 degree, so we can measure arc with the theta, ठीक है। So like है ना, I think you are now clear with this concept, ठीक है। So एक continuous piece of a circle is a arc of a circle, है ना, एक continuous piece है ना, एक piece circle था उससे मैंने continuous piece को cut किया, so this continuous piece of a circle is known as a arc of a circle, ठीक है। And what is the congruent arc? कॉन्ग्रुएंसी वी ऑलरेडी नो कि जब कुछ ना कुछ बहुत ही बिल्कुल ही सेम हो, मतलब कॉपी हो, कार्बन कॉपी हो, दिस इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं तो ऐसा आर्क जो कि सेम टू सेम हो, है ना, एक ही सर्कल से मैंने 2 पोर्शन कट कर दिए, एक ही सर्कल से मैंने क्या किया कि 2 पोर्शन मैंने कट कर दिया। मेरे पास ये एक सर्कल है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और मैंने 2 आर्क कट किए, ये इतना बड़ा है AB और ये DC इतना बड़ा है, ठीक है। और इसका जो एंगल फ्रॉम सेंटर से जो एंगल बन के निकल आ रहा है दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। सो वी कैन सी दिस AB आर्क इज इक्वल्स टू DC आर्क, बिकॉज वाई सो, बिकॉज एंगल थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, है ना, एंगल ऑफ AO इफ दिस इज OB इज इक्वल्स टू angle DOC is equals to 45 degree, right? So this is the 45 degree, right? So I think congruent है ना, congruency of a 2 arc is clear to all of you, ठीक है। So with this I think so many concept of circle are getting clear to all of you with the help of circle and with the help of very delicious and very spicy pizza, right? So this is clear to all of you. Let's move आगे, right?
चलो, तो व्हाट इज द सेमी सर्कल, द मेजर एंड माइनर आर्क, ठीक है। द मेजर एंड माइनर आर्क ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि छोटा वाला जो पोर्शन आपको जो मिल रहा है खाने के लिए दैट इज अ माइनर आर्क, ठीक है। माइनर वाला पोर्शन आपको मिल रहा है और मेजर वाला पोर्शन आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ठीक है। सो व्हाट इज द, दिस इज द माइनर आर्क, ठीक है, दिस इज माइनर आर्क एंड दिस इज द मेजर आर्क। तो व्हाट इज द सेमी सर्कल, तो अगर सर्कल है, अगर पिज्जा आपके घर में है और पिज्जा को अगर दो इक्वल पार्ट में, जो डायमीटर ऑफ ए सर्कल है, जो डायमीटर है उसने अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, सो दैट द टू पोर्शन ऑफ द पिज्जा विल बी नोन एज अ सेमी सर्कल। So here EHG is a one circle, one semicircle, and EJ and G is a one semicircle, ठीक है। So this EG diameter divides the circle in a two equal parts. So this is known as a what? This is known as a semicircle, ठीक है। तो I think concept of this है ना, major arc, minor arc and semicircle is clear to all of you, ठीक है। जब माइनर आर्क एंड मेजर आर्क जैसा कुछ रह नहीं जाता है, जब इक्वल आर्क हो जाते हैं सर्कल में, तो मीन्स द सर्कल क्या हो जाता है, वो सेमी सर्कल हो जाता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो हाउ कैन वी डिफाइन द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल आर्क्स, द टू इक्वल आर्क्स, राइट। तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल। तो क्या हुआ, डायमीटर ने टू इक्वल आर्क्स में डिवाइड किए, सो दिस बिकम्स ए सेमी सर्कल एंड राइट। So if the length of an arc is less than the length of arc of a semicircle, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क जो है अगर सेमी सर्कल के लेंथ के आर्क से छोटा है, सो इन दैट केस आपको छोटा हिस्सा मिला पिज्जा का, आपके भाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को बड़ा वाला हिस्सा मिला, सो आपको मेजर माइनर आर्क मिला एंड ठीक है, और आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मेजर आर्क मिला, ठीक है। आई थिंक विद दिस इज द मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड सेमी सर्कल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव आगे, राइट। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे पिज्ज़ा में बहुत सारी चीज़ें होती है एंड द मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स इट बिकम्स वेरी डिलीशियस एंड वेरी टेस्टी एंड वेरी स्पाइसी, ठीक है। सो लाइक वाइज सर्कल दिखने में तो गोल गोल एक चीज़ दिखता है, ठीक है, बट इट हैज़ सो मेनी पार्ट्स, सो एवरीथिंग कंबाइंड दैट मेक्स ए सर्कल परफेक्ट सर्कल। सो लाइक वाइज जैसे कि आपका पिज्ज़ा बहुत ही परफेक्ट पिज्ज़ा तब बनता है जब बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती है, ठीक है। सो लेट्स मूव नाउ आगे। सो व्हाट वी हैव द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब आपके पास दिस इज ए सर्कल, ठीक है, और क्या किया हमने, क्या किया था, हमारे पास क्या कौन सी लाइन थी, हमारे पास एक सीकेंट लाइन थी, ठीक है। हमने सीकेंट लाइन से क्या किया, एक सीकेंट लाइन था जो कि सर्कल को दो पार्ट में इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। अब हमारे पास एक पहले तो लाइन था बट नाउ आई हैव ए सीजर, ठीक है, और मैंने सीजर से क्या किया, सर्कल को ऐसे ऐसे कट कर दिया है ना बीच से। तो एक तो छोटा पार्ट कट हुआ, एक बड़ा पार्ट कट होगा सर्कल में, तो छोटा पार्ट विल बी नोन एज ए माइनर सेगमेंट, ठीक है, एंड द बड़ा पार्ट विल बी नोन एज ए मेजर सेगमेंट, ठीक है। एंड द छोटा आउटर पोर्शन विल बी नोन एज ए माइनर आर्क, ऑलरेडी यू नो, एंड द बड़ा पोर्शन विल बी नोन एज ए मेजर आर्क, ठीक है। आई थिंक विद दिस concept of a minor arc, major arc and major segment, minor segment and major segment is now clear to all of you, ठीक है। So how can we define? So this is the part of a circular region bounded by an arc, है ना, bounded by an arc chord, including the arc and the chord is called the segment of a circle. So by this we can define a segment of a circle, ठीक है। So I think this is clear to all of you. चलो let's move आगे, the sector. So this is important क्योंकि आपको जो हिस्सा मिल रहा है ना पिज्ज़ा से, ठीक है। सो इफ़ देयर इज 1 2 3 4 5 6, है ना, देयर आर 6 सेक्टर्स ऑफ ए पिज्ज़ा, ठीक है। सो दिस 6 सेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 6 पीपल्स और सो मेनी पीपल, जितने भी पीपल वहाँ पे अवेलेबल है दैट इज़ डिवाइडेड, ठीक है। तो वहाँ पे आपके फैमिली में जितने भी पर्सनस अवेलेबल हैं दैट the similar kind of portions that pizza is divided, right? So if there is a 6 people, so this is divided into 6 equal parts, ठीक है। So this portion, this entire portion, ठीक है, this entire portion is known as a sector of a pizza, or in case of circle we can say this entire portion is known as sector of a, ठीक है, sector of a circle. So this is the arc and this is covered with the help of a 2 radius, ठीक है, ठीक है। So this is known as a sector of a circle. So the region enclosed by an arc of a circle, the region enclosed by an arc of a circle, ठीक है, the arc is outside and bounded by the 2 radius, bounded by the 2 radius, ठीक है, will be known as a sector of a circle. I think with this is clear to all of you. If this is clear, let's do understand
नेक्स्ट थिंग, सो द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है. अब ना इन योर फैमिली यू एंड योर सिस्टर, राइट, और योर ब्रदर and your father and mother, there is 4 persons, ठीक है. 4 persons and there is a 1 pizza. So how it can be divided? So it should be divided into equal parts, 4 equal parts, ठीक है. The 4 equal parts of a pizza, the 1 part, this is the second part, this is the third part, and this is the 4th part, ठीक है. So when the pizza cut into 4 equal parts, ठीक है, the first every part of a pizza will be known as the quadrant of a pizza, ठीक है. Similarly you can understand this thing, है ना, ये सर्कल है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट. सो एवरी पार्ट है ना, एवरी पार्ट इज द सर्कल इज नोन एज द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल. एंड हाउ कैन वी डिफाइन दिस, द 1/4 ऑफ ए सर्कल. So I already told, if there is 4 members in your family and the pizza is cut into 4 equal pieces, ठीक है, so it will be the 1/4 of a circle. So this portion is a 1/4 and this portion is a 1/4 and another this portion is a 1/4, ठीक है. So this portion is also 1/4, this portion is also 1/4 and this portion is also 1/4, ठीक है. So equal 1/4 of a circle is known as quadrant of a circle. So I think with this concept of circle is clear to all of you. So if this is clear, let's move आगे, right? So what we have, the congruent circle, ठीक है. So likewise अगर 2 पिज्जा equal shape में हो, equal, if I say equal shape means the radius should be equal, ठीक है, the area should be equal, right? So that will be known as congruent pizza, ठीक है. In the same kind of thing है ना. So we have a circle, congruent circle means if they have the equal radius है ना, the like says 3 centimeters radius and 3 centimeters radius, ठीक है. So the congruent circles are the circle that are equal in terms of radius, diameter. Radius, if radius is equal means diameter will also be equal, ठीक है, the air surface area will also be equal. So that is known as congruent circle, ठीक है. Now cyclic quadrilateral, ठीक है. So what is the cyclic quadrilateral? So you can see है ना कि एक सर्कल बना हुआ है, so 4 सर्कल्स, ठीक है. एंड द क्वाड्रेटिक ABCD, अगर मान लो कि दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज द C एंड दिस इज द D, ठीक है. तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रेटिकल तब कहा जाएगा जब वर्टाइसेस ABCD लाई ऑन द सर्कल, ठीक है. तो जितने भी सर्कल्स आप, जितने भी क्वाड्रेटल आप देख रहे हो, सबके जो वर्टाइसेस हैं दैट लाई ऑन द सर्कल. सो दिस काइंड ऑफ क्वाड्रेटल्स आर नोन एज ए cyclic quadrilateral, ठीक है. So I think the concept is now absolutely clear to all of you. If this is clear, let's move आगे, right? I think this is getting more interesting. I think आपको मज़ा आया होगा, है ना. So this all the things we learn है ना just now all about the circle, ठीक है. And that was very interesting, है ना. तो हमने भी क्या क्या लर्न किया, let's recap that, then we'll move to the theorems of a circle, ठीक है. So we learned about started from a grand pizza, ठीक है. So we started from a grand pizza. So this grand pizza shape of a circle, ठीक है. Thereafter हमने जाना सर्कल के बारे में कि what is a circle. So circle is defined by the locus of a point, ठीक है, जो कि fixed point O से उसका distance, locus का distance is always remains constant. Then we learned about the radius, circumference, chord and diameter. Thereafter we learned about the secant and tangent of a circle, right? Thereafter we denote the point of a circle with respect to the circle, है ना. outer point, then inner point, then on the circle, है ना, on the point on a circumference, right? Thereafter what we learn, thereafter interior and exterior point of a circle. So with the help of toppings and with the help of so many points we learn about the interior and exterior point of a circle, right? Thereafter circular region, then concentric circle. With the help of pizza we'll try to learn, right? There are the arc, the minor, sector, segment, everything we learned about the circle, ठीक है. So as I already told you there's so many things in a circle, ठीक है. I think आपने सारा देखा होगा, है ना. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो बस again go and recap the circle, है ना, all the theorems, है ना. तो आपको चीज़ें, so you will learn more and more. Now we have a theorem. So what is the theorem? So theorem we have this, equal chords of a circle subtend equal angle at the circle at the center, ठीक है. तो we have to prove first theorem, equal chords of a circle means what is the chords. This is the chord of a circle, ठीक है. So P, Q and PS is a given, है ना. So what we have given, so we have a given, so points we have given in a circle, we have given what, equal chords. Equal chords means PQ
is equals to what? PQ is equals to RS. So this is given. So these are the what? These are the chords of a circle. ठीक है, इक्वल chords है ना, सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. अगर ये P and Q आर इक्वल तो बताना है कि ये पॉइंट, दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल. ऐसा हमें प्रूफ करना है. सो डैट टू प्रूफ क्या करना है हमें अब? नाउ वी हैव टू प्रूफ क्या करना है? सो एंगल ऑफ POQ इज इक्वल्स टू एंगल ROS. ऐसा हमें प्रूफ करना है. ठीक है, सो दिस वी हैव टू प्रूफ, राइट. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर कि क्या दिया हुआ है कि कॉर्ड्स हैं PQ एंड RS आर द टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल. ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूफ एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल ROS. ठीक है, सो इफ PQ एंड सो वी हैव द टू ट्रायंगल्स नाउ. ठीक है, हमने क्या किया, अगर ऐसा दिया हुआ है तो मैंने क्या किया, सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को अगर कनेक्ट कर दूं, इफ़ आई कनेक्ट दिस, है ना, इफ़ आई कनेक्ट O to Q, इफ़ आई कनेक्ट दिस O to Q. ठीक है, अगर मेरे पास इक्वल कॉर्ड्स था तो मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया. सो आई विल व्हाट कंस्ट्रक्शन आई विल डू. सो व्हाट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन आई विल डू? कंस्ट्रक्शन व्हाट आई विल डू? सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. ठीक है, मैं क्या कंस्ट्रक्शन करूँगा? सो आई विल कनेक्ट O to Q एंड O to P. एंड और क्या कनेक्ट करूँगा? O to R से कनेक्ट करूँगा और O to क्या से कनेक्ट करूँगा? S से कनेक्ट करूँगा. ठीक है, तो नाउ वी हैव व्हाट? वी हैव ए टू ट्राइंगल्स नाउ. ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं? नाउ वी मेक टू ट्राइंगल. द फर्स्ट ट्राइंगल इज POQ एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल ORS. ऐसा हमारे पास दो ट्राइंगल बन के आया. ठीक है, सो कैन वी से दैट दिस OQ and OP is a radius? Can we say this thing? Yes, we can say this thing. Can we say this OS and this OR is a radius of a circle? Can we say this for this triangle? Yes, we can say this thing, है ना. So by this means, है ना, in a triangle, है ना, we have a two triangles. So the triangle is PQR. So can we say in this triangle OQ is equals to what? OP. So this is what? This is a radius of a circle, है ना. ये सर्कल का रेडियस है ये तो. ठीक है, तो 2.2. सो ये दोनों तो रेडियस हैं. ठीक है, एंड in this triangle can we say, है ना, in this triangle, है ना, triangle ORS, in the triangle ORS can we say this OR and OS are equal? Can we say this thing? How can we say this thing? Because these two are also radius of a circle. ठीक है, so by this means we can we say that this side equals to this side equals to this side. Similarly all, है ना, this can be by this way, है ना, this two equations, this is equation 1 and equation 2, because these all are the radius of a circle. So all points are equal, all sides are, है ना. So OP is equals to OQ is equals to OS is equals to OR. ठीक है, so these all are the what? These all are the radii of a circle. ठीक है, ये तो रेडियाई हो गया. ठीक है, नाउ वी हैव दिस OQ एंड OS और R ऑलरेडी, है ना, दिस इज इक्वल. OQ लाइन सेगमेंट एंड RS लाइन सेगमेंट इज ऑलरेडी इक्वल. ठीक है, सो बाय दिस so we learn about the SSX congruencies, the side. So both the triangle POQ is congruent to triangle ORS. So if these two triangles are congruent, ठीक है, so can we say these two angles are also equal? So these two angles are also equal. ठीक है, I think by this way we proved that the equal chords of a circle subtend equal angle at the center. So by this way we proved this theorem. ठीक है, I think the concept is absolutely clear to all of you, right? So if this is clear, let's take a screenshot and let's move again, right? So we have, if two arcs of a circle are congruent, ठीक है, means दो आर्क हैं सर्कल के, both arc are congruent means क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है
कि दिस पी क्यू आर्क एंड दिस आर्क आर एस आर्क आर इक्वल, ठीक है। अगर ये दोनों पोजिशन अगर इक्वल हैं देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, देन पी क्यू एंड दिस आर एस, है ना, कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। तो व्हाट वी हैव गिवन, सो वी हैव given that the PQ chord is equals to what, this RS chord, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, सो दिस इज गिवन, सो दिस इज गिवन, ठीक है। सो वी हैव टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है, सो वी हैव टू प्रूफ दिस PQ, सो PQ इज इक्वल्स टू PQ, है ना, chord इज इक्वल्स टू दिस RS chord, ठीक है। अभी हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो व्हाट दिस इज वी हैव गिवन कि आर्क इज गिवन, सो दिस इज द आर्क, ठीक है, एंड दिस इज द chord, ठीक है। सो व्हाट अगेन आई विल मेक कंस्ट्रक्शन, अगेन विल डू कंस्ट्रक्शन। मैं क्या करूँगा, अगेन कंस्ट्रक्शन करूँगा, ठीक है। यहाँ से O से एक लाइन कनेक्ट करूँगा, R से लाइन कनेक्ट करूँगा, ठीक है। सो वी ऑलरेडी नो कि दिस PQ एंड RS इज गिवन, ठीक है। सो कैन वी से, है ना, दिस कंस्ट्रक्शन अगर ये मैं कनेक्ट करूँ, सो कैन वी से OQ इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू OS इज इक्वल्स टू OR, बिकॉज दी ऑल आर द रेडियाई ऑफ ए सर्कल, ठीक है। नाउ वी हैव टू ट्राइंगल्स, नाउ वी हैव द टू ट्राइंगल्स। व्हाट आर द ट्राइंगल्स, है ना, हमारे पास ट्राइंगल्स क्या क्या बन के आए, सिमिलर काइंड ऑफ थॉट, है ना, सिमिलर काइंड ऑफ थ्योरम ये भी है। सो वी हैव PQO एंड वी हैव अनदर ट्राइंगल इज ट्राइंगल ROS, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि, है ना, इक्वल आर्क्स अगर बना रहा है, सो दिस टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल इक्वल है एंड दोस टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो वी कैन सी हियर इन दिस ट्राइंगल, है ना, OQ is equals to so because these are the radius, so है ना, so the two sides of the triangle are equal, both the triangle are equal, and one angle subtended at a, just now learn angle subtended at a center is also equal, ठीक है। and we have also angle POQ is equals to angle ROS, ठीक है। आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू, है ना, ये वाली एंगल दोनों बराबर है। बाय दिस मीन्स we can say SAS, so the two sides and one angle are equal. So by SAS congruency, by SAS congruency, ठीक है। So we can say triangle this PQO is congruent to triangle ROS. So if both are congruent, so we can also say that this PQ is equals to RS, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो क्या हुआ, दिस वॉज द केस 1, सो दिस वॉज व्हाट, दिस वॉज केस 1 व्हेन आर्क्स आर माइनर। यहाँ पे क्या थे, आर्क्स माइनर थे, ठीक है। अगर आर्क्स मेजर होते, आर्क अगर क्या होता, ये तो माइनर आर्क्स थे। अगर सर्कल ऐसा होता हमारा और आर्क ये होता है, सो दिस इज ए एंड दिस, अगर ऐसा होता केस 2 में, अगर ये केस अगर ऐसा होता, सो दिस इज द केस 2। अगर केस 2 में अगर आर्क ऐसा होता, सो दिस अगेन बिकम्स ए सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल बनता तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो वे ऑलरेडी नो, है ना, कि दिस इज द डायमीटर। सो डायमीटर अगर है तो वो इक्वल ही होगा, ठीक है। सो देयर आर टू केस इन दिस थ्योरम, ठीक है। आई थिंक बाय दिस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरम 2, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव आगे। So what we have third the perpendicular from a center, so this is the perpendicular from a center of a circle to a chord bisect the chord, ठीक है। तो क्या है कि ये एक सर्कल है जिसका कि सेंटर ये है, ठीक है। सो दिस इज a circle जिसका कि सेंटर O is a center, so given is center and AB is a arc of a AB is a chord of a circle, ठीक है। AC is a chord of a circle, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, सो दैट बाइसेक्ट बोथ द बाइसेक्ट AC इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है ना, सो व्हाट वी हैव गिवन, सो वी हैव AC इज ए, सो व्हाट वी हैव गिवन, हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए सर्कल कॉर्ड, सेंटर टू ए सर्कल टू ए कॉर्ड bisect the chord, है ना। so if given is that AC is a chord, ठीक है, AC is a chord, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। so O is a center, O is a
सेंटर, ओ इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। एंड ओ बी गिवन, ओ बी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है ना, हमें प्रूफ क्या करना है, सो वी हैव टू प्रूफ, ठीक है, कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, हमें ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, अगर मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, सो कैन वी कनेक्ट दिस टू लाइन्स, सो इफ वी कनेक्ट ओ ए and this OC, ठीक है, so this becomes two triangles now, so triangle, so this becomes what, this becomes two triangles, the triangle OAB and triangle OBC, हमारे पास दो ट्रायंगल बन के आया है। एंड वी so already given this is a perpendicular, so the angle B will be the 90 degree, ठीक है। so from triangle OAB, so what is the given in this triangle, this is what, this is a angle OBA is equals to 90 degree, ठीक है, because this is a perpendicular, ठीक है, so perpendicular, right, so this is given, and this OA is a radius, OA is a radius, ठीक है, तो radius है, ठीक है। and again this will make, है ना, and again triangle अगर मैं बात करूँ, so triangle OBC, so OBC you can say this OC is a radius, ठीक है, OC is a radius, so these two sides are equal, ठीक है, this is the common side, so this OB is also equal, so OB is equal side for both the triangles, OB is equals to OB, ठीक है। so can we say, so in this triangle OC is a radius, ठीक है, so this OC is a radius, so can we say कि by SAS, so can we say by S and A, ठीक है, so can we say by SAS congruency both the triangles are congruent, ठीक है। so can we say triangle AOB is congruent to triangle OBC, ठीक है। so if both the triangles are congruent, so this side will also be equal, ठीक है, therefore we can say that AB equals to BC, so this we had to prove, ठीक है। so by this way I think आपके कॉन्सेप्ट जो है सो थ्योरम्स के क्लियर हो रहे होंगे, है ना। एक बार हमने लर्निंग अगर अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, सो देयर आर ऑलमोस्ट 19-20 थ्योरम्स इन दिस चैप्टर, ठीक है। so in the next class we are going to try to cover almost all the theorems of a circle, ठीक है। so if you understand this thing, let's move again, right, so we don't have anything, so and just आप क्या करो, पिज्ज़ा खाते रहो, सर्कल पढ़ते रहो, सर्कल समझते रहो, लर्न करते रहो, ठीक है, बिकॉज पिज्ज़ा इज गोइंग टू हेल्प यू टू लर्न सर्कल, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। आई थिंक दिस पिज्ज़ा वाज वन ऑफ द टेस्टीएस्ट पिज्ज़ा आपने अभी तक जो भी पिज्ज़ा पढ़ा है। सो कैन वी ऑल से द सर्कल इज ए डिलीशियस, so if circle is delicious, so can we say the mathematics is spicy? So if mathematics is spicy, so let's like the class, share the class, है ना, और सब्सक्राइब करो चैनल को, so that you get regular updates regarding channel, ठीक है। so by the meantime thank you, और आज I'll request all of you just go and order pizza and try pizza, and so you will recall everything just we learn right now, ठीक है। so by the meantime bye bye, please like, share and subscribe the channel, thank you।